dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa meditação diária. Bom dia. Estamos aqui em Salvador, Bahia, e mais uma manhã, mais uma alvorada. Possa Deus abençoar cada um de vocês. Estamos aqui, Jo, Daniel e Diana. Sejam bem-vindos todos. Podemos sentar confortavelmente, seja numa cadeira, seja no seu sofá, seja no chão. Podemos fechar os nossos olhos por alguns instantes e buscar nos conectar com a nossa Mãe Kundalini. Podemos abrir as nossas mãos no colo, na palma para cima, com a palma para cima. Lentamente podemos abrir nossos olhos e vamos elevar nossa Kundalini e dar os bandas de proteção. Podemos colocar nossa mão direita em direção à Mãe Terra, em contato com a Mãe Terra, se estivermos sentados no chão. E vamos elevar nossa atenção simultaneamente ao nosso Muladhara e nosso Sahasrara, que é o chakra do alto da nossa cabeça. Muladhara é o primeiro chakra, é o chakra raiz que tem a conexão sobre a Mãe Terra, e o Sahasrara é o sétimo chakra que está no alto da nossa cabeça. Mata, Shri Ganesha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha.
podemos colocar a nossa mão direita na nossa região abdominal. Podemos colocar a nossa mão direita exatamente na frente da nossa barriga, onde nós temos o Nabhi Chakra. Ó Mãe Kundalini, pela tua graça, eu sou uma pessoa satisfeita. Por favor, ajude-me no meu processo de evolução. Mantra de Shri Lakshmi Vishnu. Om Tvameva Sakshat Shri Lakshmi Vishnu Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Bem lentamente podemos deslizar nossa mão direita para o nosso Nabhi esquerdo. Ó Mãe Kundalini, por favor, estabilize as qualidades do meu Nabhi esquerdo. Desperta essas qualidades do meu Nabhi esquerdo. Pela tua graça, faz de mim o meu próprio mestre. Shri Gruha Lakshmi. Om Tvameva Sakshat Shri Gruha Lakshmi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Nós podemos, sem pressa, mas lentamente, devolver a nossa mão direita à nossa perna e vamos colocar a nossa mão esquerda no nosso Nabhi direito, mais ou menos na altura do nosso fígado. Ó Mãe Kundalini, por favor, ilumina a minha atenção. Acalme os meus pensamentos, a minha ansiedade, se existir. Por favor, Mãe Kundalini, ilumine a minha atenção. Shri Raja Lakshmi Mantra. Om Tvameva Sakshat Shri Raja Lakshmi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Novamente, podemos pedir a nossa Mãe Kundalini, mais uma vez. Mãe Kundalini, por favor, ilumine a minha atenção.
Podemos voltar com a nossa mão esquerda para a nossa perna, deixando as duas mãos na nossa perna com a palma voltada para cima e manter a atenção no Sahasrara e meditar por alguns instantes. Mantendo a nossa atenção no Sahasrara, as nossas mãos estão no nosso colo, na nossa perna, aberto, com palma para cima, e podemos lentamente abrir os nossos olhos e assistir à palestra da Shrimataji. Vamos tentar absorver todas as vibrações via das palavras da Shrimataji. राजराजेश्वरी का मतलब है कि जब कुंडलिनी नाभि में आ जाती है, अब कुंडलिनी जब नाभि चक्र में आती है जहाँ, उस पे लक्ष्मी का स्वरूप प्राप्त होता है, ऐसा कहें, या लक्ष्मी का परिणाम उस पर आता है, ऐसा कहिए, या जब ये कुंडलिनी नाभि चक्र में आती है तो लक्ष्मी स्वरूपा ये किस प्रकार की होती है। इस पर अनेक तरह के लक्ष्मियों का आरोपण है। गृह लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, ऐसे अनेक लक्ष्मियां। पर ये लक्ष्मी तभी
इन स्वरूपों को प्राप्त करती जब इन पर कुंडलिनी की शक्ति आ जाए। कुंडलिनी के शक्ति के मिलन से ही ये स्वरूप आते। इसलिए राजराजेश्वरी हालांकि कुंडलिनी की शक्ति नाभि पर आने पर जो स्वरूप धारण करती है उसे लोग कुंडलिनी को ही राजराजेश्वरी मानते हैं। या कहा जाए कि आदि शक्ति का स्वरूप नाभि चक्र में जो होता है उसे राजराजेश्वरी कहते हैं। अब जिस इंसान के नाभि चक्र में राजराजेश्वरी स्थापन हो गई, माने गृह लक्ष्मी हो गई लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में राजराजेश्वरी। राजलक्ष्मी की अंतिम स्थिति जो है वो राजराजेश्वरी की। अब ये राजराजेश्वरी की अंतिम स्थिति में एक सहयोगी को कैसे होना चाहिए? इसमें लक्ष्मी का तो आशीर्वाद आना ही हो। जब ऐसे मनुष्य पर कुंडलिनी जागरण के बाद लक्ष्मी का आशीर्वाद आ गया और आना ही है, सब जितने भी सहयोगी हैं सब पर लक्ष्मी का आशीर्वाद आना। और कभी कभी ये लक्ष्मी काफी बढ़ सकती है, अनपेक्षित, और नहीं भी बढ़ने पर उसकी तबीयत, ऐसे इंसान की तबीयत एक राजा जैसी हो जाती है। जब तक आपकी तबीयत वैसी होती नहीं तब तक समझना चाहिए कि कुंडलिनी अभी नाभि में घूम रही। तबीयत बदलती, सहयोग में आने पर जो सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि मनुष्य की तबीयत बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। जो आदमी लक्ष्मी से भरा है, जिसके अंदर लक्ष्मी दिखाई नहीं देती, माने ये कि बहुत से रईस लोग भी होते हैं लेकिन वो कंजूस होते हैं, तो उनको कोई लक्ष्मीपति नहीं कह सकता। उनमें लक्ष्मी का कोई स्वरूप ही दिखाई नहीं देता। भिखारी जैसे रहते हैं, हर समय पैसे के लिए रोते हैं, किसी के लिए 2 पैसा निकालना उनके लिए मुश्किल। ऐसे जो कंजूस लोग होते हैं उनको कहना चाहिए कि उनके अंदर अभी कुंडलिनी का जागरण ही नहीं, कंजूसी के मारे मरे जाते हैं। इतने कंजूस होते हैं, इतने पैसे के बारे में सोचते हैं कि उनका लिवर भी खराब हो सकता है, उनकी शक्ल बिल्कुल भिखारियों जैसी लगेगी। तो लक्ष्मी को प्राप्त करना ही कार्य नहीं है कुंडलिनी का। जो लक्ष्मी का स्वरूप है वो आपके अंदर उतारना, ये कुंडलिनी का कार्य है। तो राजेश्वरी जिसको मानते हैं, जो ये कुंडलिनी की शक्ति जो आपके अंदर लक्ष्मीपति का स्वरूप उतारती है, ये राजराजेश्वरी। उसका ये मतलब नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आना चाहिए, रुपया आना चाहिए, पर दानत कि जैसे कोई आप राजा हैं। राजराजेश्वरी का मतलब है कि आप राजा तबीयत हो। अपने तो राजा लोग भी बड़े भिखारी होते हैं और कंजूस होते हैं, झूठे होते हैं, पैसा खाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो शुद्ध स्वरूप की बात हो रही। जो राजराजेश्वरी का पुजारी है और जिसने उसे प्राप्त कर दिया, उसके कितने तो भी गुण होते हैं कि जो शायद आज इस लेक्चर में पूरे न बता सके। लेकिन सबसे बड़ी तो चीज ये होती है कि इसके अंदर दानत,
जनरॉसिटी आ जाता है, जनरस हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं राजराजेश्वरी की शक्ति से प्लावित हूं, मुझे कभी भी पैसे की या किसी चीज की दरकार ही नहीं रहने वाली, तो क्यों न मजा उठा ले, क्यों न लोगों को चीज देने से अपनी तबीयत खुश है। पहले जब कोई राजा लोग खुश होते थे तो अपने पास की सबसे कीमती चीज उठा के दे देते थे लोगों को। जिस आदमी में जनरॉसिटी नहीं है, दानत्व, उसका अर्थ ही अभी अधूरा ही पड़ा हुआ। सबसे पहली चीज तो ये कि कोई राजा किसी से जाके भीख नहीं मांगता, कभी वो गरीब हो जाए और उसकी सारी कुछ संपत्ति लुट जाए तो भी वो किसी से जाके भीख नहीं मांगे, वो मर जाएगा पर भीख नहीं मांगे। तो राजा तबीयत सहयोगी हो जाते हैं। उसके रहन सहन में भी एक राजा तबीयत होती है, वो फटे कपड़े पहन करके नहीं घूमता, जैसे कि हरे रामा वाले लोग श्री राम का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, और कृष्ण स्वयं कुबेर और उनकी प्रजा बनकर के और भिखारी जैसे घूमते हैं। किसी भी तरह से इनको तो कृष्ण का तत्व ही पता है, लेकिन सहयोगियों को पता होना चाहिए कि आपके तबीयत के अनुसार परम चैतन्य आपकी स्थिति बनाए। जो इंसान हमेशा पैसे के लिए रोता रहेगा उसकी हालत वैसी है। जो इंसान हर समय पैसे को तौलता रहेगा और देखता रहेगा कि किस तरह से मैं पैसा बनाऊं, यहाँ तक कि सहयोग में आकर के लोग चाहते कि सहयोग में पैसा बना, ये तो बिल्कुल ही गए बीते लोग, इनसे गए बीते तो कोई। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि सबसे गए बीते लोग कौन है, तो उन्होंने कहा जो भगवान के मंदिर में आकर के लोगों से भीख मांगते। तो भगवान बैठे हुए तो लोगों से भी क्या मांगते। इसी प्रकार सहयोग में भी ऐसे लोग बहुत ही कम है, पर है जो सोचते हैं कि सहयोग में आकर के हम किसी बात से पैसा बनाते। हमें किसी ने बताया कि गणपतिपुरे में सहयोगी कुछ सामान लेके आए थे, उसे बेच रहे थे। एक साल जरूर आए जो कि हमसे पूछ के लाए और उन्होंने बेचा, और जो कुछ भी उनको प्रॉफिट हुआ उन्होंने सहयोग को दे दिया। मैं कहती ये भी नहीं करना चाहिए, और तो भी वो कहते हैं कि हमारी वजह से सहूलियत होती है, लोगों को साड़ियां मिल जाती है, ऐसा। पर जो इंसान सहयोग में आकर के और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है वो तो ऐसा है कि उसको सहयोगी कहना ही नहीं चाहिए। उससे आप समझ ही नहीं सकते हैं कि राजराजेश्वरी की शक्ति क्या है। उसकी शक्ति से मनुष्य पैसा हो या नहीं हो, कोई आपके अंदर डर नहीं रह जाता, कोई अभाव की भावना नहीं रह जाती कि मेरे अंदर ये अभाव है। उसको संपूर्ण ऐसा लगता है कि पूरे पूर्व में बैठा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों डरूं, मैं जहां रहूंगा वही मेरे लिए समृद्धि है, वही मैं सब कुछ चीज प्राप्त कर सकता हूं। और वो एक
बहुत ही आलिशान तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। उसकी तबीयत एक बहुत ही भव्य महान इंसान की जैसी होती है। उसको देने में ही मजा आता है, लेने में नहीं। कोई आदमी रईस होगा तो होगा अपने घर का, और कोई गरीब होगा तो भी वो अपने घर का, पर वो अगर सहयोगी है, चाहे वो गरीब है अमीर है, उसके लिए वो सर आंखों का पूरी तरह से उसकी मदद करने को तैयार होता है। सहयोग में ऐसे भी लोग हैं जो असहज लोगों के लिए बहुत करते हैं, पर अगर सहयोगी कोई गरीब आ जाए तो उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देते। तो बाह्य के आडंबरों को देख करके बहुत से लोग उनका महत्व करते हैं। ये बड़े महान हैं, इनके पास इतनी मोटरें हैं, या ये बड़े भारी यहाँ के मशहूर एक्टर हैं, या डॉक्टर हैं, या आर्किटेक्ट हैं, बहुत बड़े आदमी। ये तो बाह्य की उपाधियां उसका महत्व करते हैं। और कोई जन ये सोचता है कि ये तो शक्ति का संचय इसके अंदर है, इतनी इसके अंदर से चैतन्य की लहरें बह रही। ये कौन अवलिया है, उसको राजा तबीयत आप कहें। अपने देश में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं। शिवाजी महाराज का उदाहरण खासकर सोचने में, स्वयं तो वो थे ही आत्म साक्षात्कारी और बड़े आदर्श पुरुष थे, पर उनका संतों के प्रति जो व्यवहार था वो अत्यंत सुंदर और नम्र था। उनके पास उनके गुरु श्री रामदास एक दिन पहुंचे और उन्हें बाहर से ललकारा। शिवाजी महाराज ने एक चिट्ठी लिख करके झोली में डाल दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि गुरु, मेरे गुरु, मेरी सारी जो कुछ सत्ता है, साम्राज्य है, ये सब मैंने आपके झोली में डाल दिया। उस चिट्ठी को पढ़ के गुरु रामदास हंसकर उन्होंने कहा कि बेटे, हम तो सन्यासी हैं, हम क्या तुम्हारी साम्राज्य लेके करेंगे, तुम तो राजा हो और तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन हाँ, अगर तुम सोचते हो कि इस साम्राज्य को भक्ति से चलाएं, तो इसका झंडा जो है, जो हम छाती पहनते हैं, उस रंग का त्रिकोणी झंडा बना। उस झंडे से ये लोग जान जाएंगे कि तुम भी एक संन्यास्त भाव से राज कर रहे हो। उसके प्रति कोई खिंचाव लगाव तुमको नहीं। तुम हो राजा, लेकिन उसको तुम जानते नहीं कि तुम राजा। जो लोग अपने ही को मैं राजा हूं, पागल जैसे कहते फिरते हैं मैं फलाना हूं, वो होते नहीं, और जो होते हैं वो कभी कहते भी नहीं। ऐसे बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे। Vamos buscar permanecer em silêncio, permanecer nesse estado de introspecção
por mais alguns instantes. हे लक्ष्मी मां निर्मल मां, महालक्ष्मी मां निर्मल मां, तुझको शत शत कोटि तेरा पूजन निर्मल दर्शन अवसर हमने पाया। हे आदि मां निर्मल वंदन अवसर हमने पाया। हे निर्मल मां हे दिव्य रूपिणी अपना रूप दिखा दे। हे लक्ष्मी महालक्ष्मी मां निर्मल मां। भाग्य हमारा तुझको पाया, गुण को तेरे सबने गाया। झूठी काया झूठी माया अंधियारे में तूने दीप जलाया। अब नैनों की प्यास बुझा दे, अपना रूप दिखा दे। हे लक्ष्मी मां निर्मल मां, महालक्ष्मी मां निर्मल मां। Chegamos para o final da nossa meditação diária hoje. Vamos elevar o nosso Kundalini. Vamos convidar nossa mãe Kundalini para elevar e depois dar os bandhans da proteção.
तूने सबको राह दिखाया, गगन सृष्टि को तूने रचाया। अब तो हृदय का दीप जला दे, अपना रूप दिखा दे। हे लक्ष्मी मां निर्मल मां, महालक्ष्मी मां निर्मल मां, तुझको शत शत कोटि शत कोटि प्रणाम 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 प्रणाम। हे लक्ष्मी मां निर्मल मां। Pessoal, desejamos a vocês um excelente dia. Possa Deus abençoar vocês e despertar essas qualidades dessa atenção iluminada e as demais qualidades do Nabi também. Possam essas qualidades serem despertas em toda a sociedade. Tenham um excelente dia. Tudo de bom para vocês. Bom dia. Bom dia. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji.